Student, this question is in context with unit number 3. First topic of unit 3 we will like to discuss LS coupling. और ये बहुत important derivation है. Find an expression for interaction energy in case of LS coupling scheme for two valence electron atom. So let us start topic LS coupling. LS coupling, also known as Russell-Saunders coupling. In this coupling, spin-spin correlation and orbital interaction is stronger in comparison of spin-orbit interaction. ये देखिए स्टूडेंट S1 स्टार जो है दिस इज स्पिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, S2 स्टार इज स्पिन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन. और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है और ये दोनों जो है एरो साइज में बराबर मैंने दिखाए. अब S1 स्टार की प्रिसेशन और S2 स्टार दोनों की प्रिसेशन उनके रिजल्टेंट कैपिटल S स्टार के अबाउट. S1 star, S2 star, they couple strongly and they precess about the resultant capital S star. इसी तरीके से L1 star is orbital angular momentum of first electron. L2 star is orbital angular momentum of second electron. L1, L2 star दोनों का resultant capital L star. So L1 star will ये precision दिखाई हुई है. This is precession. L1 star की precession L star के about. L2 स्टार की प्रिसेशन L स्टार के अबाउट. L1 स्टार L2 स्टार दोनों का रिजल्टेंट कैपिटल L स्टार. S1 स्टार की प्रिसेशन S स्टार के अबाउट. S2 स्टार की प्रिसेशन S स्टार के अबाउट. और S1 स्टार S2 स्टार दोनों का रिजल्टेंट S स्टार कैपिटल S स्टार. अब बात आती है कैपिटल S स्टार एंड कैपिटल L स्टार. कैपिटल L स्टार कैपिटल S स्टार इन दोनों का रिजल्टेंट है कैपिटल J स्टार. जो समझने वाली बात है वो ये है कि LS coupling this is valid for the most atoms, in particular for light atoms. LS coupling is valid for systems or atoms having more than one valence electron. यानी more than one valence electron, two valence electron भी हो सकते हैं, three valence electron भी हो सकते हैं, and so on so forth. L1 star जैसे ये L1 star, L2 star, L3 star, and so on so forth. L1 star is orbital angular momentum of first electron, L2 star orbital angular momentum of second electron, and this is of third electron. S1 star is spin angular momentum of first electron, S2 star is spin angular momentum of second electron, and so on so forth. So these individual angular orbital angular momentum will couple strongly about the resultant capital L star. These individual spin angular momentum of various electrons will couple strongly about capital S star. So ये strongly couple करेंगे L star के about, ये strongly couple करेंगे S star के about, और इन दोनों का जो precision है वो है J star. तो L star S star जो है they weakly interact and give J star. So L1 star L2 star की precision about L star strongly, S1 star S2 star की precision about S star strongly, L star S star की precision about J star weakly. तो ये LS कपलिंग में ये तीन पॉइंट जो है मेन पॉइंट है. अगर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे लिखेंगे L1 star L2 star will precess about L star strongly, S1 star S2 star will precess about capital S star strongly. लेकिन कैपिटल L star will precess about capital J star weakly. तो we discuss now spin orbit interaction क्योंकि LS के मायने यही है LS coupling यानी spin orbit interaction. So as a result of this weak interaction, the word weak is important when I write capital L star. As a result of this weak interaction, the resultant capital vector S and capital L vector couples less strongly to give total resultant angular momentum वेक्टर कैपिटल वेक्टर J. कहने का मतलब स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एंड ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इंटरेक्शन अबाउट कैपिटल L स्टार, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की इंटरेक्शन अबाउट कैपिटल L स्टार is dominating kind of interaction between orbital angular momentum and spin angular momentum about J star. तो गामा सफिक्स स्पिन स्पिन
as well as gamma suffix ll यानी ऑर्बिट ऑर्बिट dominates gamma suffix ls. ये स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ये ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन और ये ऑर्बिट स्पिन इंटरेक्शन, लेकिन एलएस कपलिंग में ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर को डोमिनेट करते हैं. Why? Because LS coupling, I just told you, this is valid for light atoms. और light atoms का मतलब है जैसे बहुत light atoms हैं, यानी एटॉमिक नंबर बहुत एटॉमिक नंबर कम वाले एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे केस में डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल फॉर लाइट एटम. ऑन द अदर हैंड फॉर हेवियर एटम डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज लार्ज. लेकिन LS coupling is not valid for heavier atom, it is valid for light atom. So ये माइनस नहीं है, इसका मतलब L1 L2, अगर L1 जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, L2 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्बिट इंटरेक्शन, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन एंड स्पिन स्पिन इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ लाइट एटम्स. I mean to say in case of LS coupling. And in LS coupling, अभी just मैं बता रहा हूँ, coupling due to orbital orbital interaction, यानी L1 star L2 star is strong. Coupling due to spin spin interaction, यानी S1 star S2 star is strong. और कैपिटल S वेक्टर जो होता है, ये वेक्टर जो है, ये हमेशा एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है. ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, to give rise to total resultant spin angular momentum vector. लेकिन जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर S का मोड इक्वल टू H क्रॉस रूट S इंटू S प्लस वन, अनेकों बार आपको मैंने कहा एनीथिंग विच इज मल्टीपल ऑफ H क्रॉस इज एंगुलर मोमेंटम. तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, लेकिन जो राइट साइड वाला S होता है वो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है. प्लीज ध्यान दें, अब ये S है, जैसे तो ये भी S है, ये भी S है, लेकिन ये S जो है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, लेकिन ये S जो है राइट साइड वाला जो अंडररूट के अंदर है, प्लीज नोट इट, दिस इज नॉट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज टोटल स्पिन क्वांटम नंबर. और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये एंगुलर मोमेंटम की, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म है. दिस इज वेक्टोरियल सम, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी सम. जब ये हम इसको मोड में लिखते हैं, यानी जब वेक्टर हटा देते हैं, तो फिर कैपिटल S कैसे लिखते हैं? कैपिटल S की वैल्यू मोड S1 माइनस S2 से लेके S1 प्लस S2, यानी कैपिटल S की मैक्सिमम वैल्यू S1 प्लस S2, कैपिटल S की जो मिनिमम वैल्यू है वो S1 माइनस S2 का मोड है. और अगर आप कहोगे कि इनके बीच में वैल्यू क्या है, तो S1 माइनस S2 मोड, फिर आगे एक इसमें प्लस कर दीजिए, फिर मोड S1 माइनस S2 प्लस 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इधर जाएंगे तो एक वैल्यू बढ़ेगी और मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएंगे तो एक वैल्यू घटेगी. यानी ये हाईएस्ट वैल्यू S1 प्लस S2 है, तो इधर S1 प्लस S2 माइनस 1. So student, three interactions. One is SS spin spin interaction, second is orbital orbital interaction, and third is spin orbit interaction. So before we proceed towards LS coupling, I will like to tell you SS coupling, then LL coupling, then finally we go to talk about LS coupling. So okay, SS coupling, for instance, two electrons, this is spin angular momentum of one electron, spin angular momentum of second electron, and precession of spin angular momentum of first electron about the resultant capital S vector, precession of second spin angular momentum या precession of spin angular momentum of second electron about the resultant capital S vector. ये precession है. तो S2 वेक्टर की टिप इसको प्रिसेस करती है, कौन को प्रिसेस कर रही है, कौन पे प्रिसेस होती है. तो S2 वेक्टर की ये डॉटेड जो आप कौन देख रहे हैं, प्रिसीजन है. किसकी प्रिसीजन है? S2 वेक्टर की. किसके अबाउट? S वेक्टर के अबाउट. ये S1 वेक्टर की प्रिसीजन है. किसके अबाउट? कैपिटल S वेक्टर के अबाउट. कैपिटल S वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है. वो है ना कि पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड. S1 वेक्टर ये इसके पैरेलल हो गया, S2 वेक्टर ये ऐसे हो गया. तो ये S2 वेक्टर, यहाँ पे S2 वेक्टर, ये देखिए S2 वेक्टर, S2 वेक्टर, S1 वेक्टर, S1 वेक्टर. तो ये को-इनिशियल पॉइंट के थ्रू जो प्रिंसिपल डायगोनल है इन दोनों का रिजल्टेंट है. तो कैपिटल S वेक्टर की जो वैल्यू है वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2
मिनिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड टू वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2 की मैक्सिमम वैल्यू। आप जानते होंगे स्टूडेंट +1 इंटरमीडिएट क्लास में भी जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट एडिशन निकालते हैं तो हम बताते हैं कि रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो उन दोनों वेक्टर का डिफरेंस, यानी ये मिनिमम वैल्यू हमेशा उन दोनों वेक्टर का डिफरेंस और मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का डिफरेंस जो है मिनिमम वैल्यू, उन दोनों का एडिशन जो है मैक्सिमम वैल्यू है। इन्हीं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कैपिटल एस वेक्टर की वैल्यू लाई करेगी। तो जब ये वेक्टर हटाएंगे तो ये मोड S1 माइनस S2, लेकिन यहाँ वेक्टर नहीं आएगा और ये S1 प्लस S2। आप कहोगे मोड क्यों डाला, ताकि ये ध्यान रहे क्योंकि बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। आई विल लाइक टू टेल यू एग्जांपल ऑफ SS कपलिंग फॉर वन इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन फॉर्म्यूला है हाफ इंटीग्रल स्पिन, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो रिजल्टेंट भी हाफ ही रहेगा। और मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1 और s की वैल्यू हाफ है तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, आई मीन टू से 2 का मतलब डबलेट। अब हमें वन इलेक्ट्रॉन के बाद वी प्रोसीड टू टॉक अबाउट टू इलेक्ट्रॉन। अगर टू इलेक्ट्रॉन की SS कपलिंग हो, पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, SS कपलिंग का ये डायग्राम आप देख रहे हैं। और अभी बताया था कैपिटल S की ये वैल्यू S1 माइनस S2 के मोड से लेके S1 प्लस S2 और हाफ माइनस हाफ से लेके हाफ प्लस हाफ, यानी 0,1। तो कैपिटल S की वैल्यू 0 है तो सिंगलेट, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इज 2s प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज 1, यानी सिंगलेट। कैपिटल S की वैल्यू 1, मल्टीप्लिसिटी इज 2s प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, ट्रिपलेट। फिर मैं एक और एग्जांपल डील करता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है तो फर्म्यून, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, तीसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ। तीसरे के साथ तो कपलिंग बाद की बात है, पहले इन दोनों की कपलिंग करो। तो S1 S2 की कपलिंग से S डैश आ जाएगा, S डैश क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 का मोड, यानी हाफ प्लस हाफ से हाफ माइनस हाफ, हाफ प्लस हाफ यानी 1, हाफ माइनस हाफ यानी 0। और ये S3 अभी हमने उसको इंटैक्ट रखा है एज इट इज। अब ये S डैश की वैल्यू जो 0 है इस S3 हाफ के साथ कपल करेगी, फिर S डैश की वैल्यू 1 जो है फिर इस S3 हाफ के साथ कपल करेंगे। तो देखिए S डैश 0 और हाफ जब कपल करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 प्लस हाफ से 0 माइनस हाफ का मोड यानी हाफ। फिर आया S डैश की वैल्यू 1 और S3 की वैल्यू हाफ, ये आपस में कपल करेंगे। तो जब 1 और हाफ आपस में कपल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस हाफ से लेके 1 माइनस हाफ का मोड, यानी हाफ 3/2। तो हाफ का मतलब अभी बताया था, जब हाफ का मतलब डबलेट और 3/2 का मतलब होता है क्वार्टेट। 3/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 2 इंटू एस प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 4। और जब भी मल्टीप्लिसिटी 4 होती है तो उसके मायने होते हैं क्वार्टेट। तो इसका मतलब 2 डबलेट होगा, 1 क्वार्टेट होगा व्हेन वी टॉक अबाउट SS कपलिंग फॉर द हेडिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। यानी 3 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन कपलिंग होती है, SS कपलिंग होती है, तो 2 डबलेट की फॉर्मेशन होती है और एक क्वार्टेट की फॉर्मेशन होती है। Now I proceed ahead to talk about LL coupling, यानी ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। और कैपिटल वेक्टर L का मोड जो है h bar root L into L plus 1। So many time I told you, even in vector model I told you, जो राइट साइड में L होता है वो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। राइट साइड वाला हमेशा क्वांटम नंबर होता है, लेफ्ट साइड वाला हमेशा एंगुलर मोमेंटम होता है। यूं तो ये भी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन क्वांटम नंबर ये जो है ये सिर्फ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसमें क्वांटम नंबर वर्ड नहीं आएगा। एंड एनीथिंग व्हिच इज मल्टीपल ऑफ h क्रॉस इज एंगुलर मोमेंटम। सो कैपिटल वेक्टर L की वैल्यू बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, रिकैप्चुलेट इटसेल्फ। जैसे वेक्टर S का ये रिजल्टेंट S1 माइनस S2 का मोड से S1 प्लस S2, इसी तरीके से L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर के मोड की मिनिमम वैल्यू से लेके L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर का मैक्सिमम। तो L1 माइनस L2 का मोड, फिर L1 माइनस L2 का मोड प्लस 1, एक इधर बढ़ाते जाएंगे क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इधर से जाएंगे कम होता जाएगा, इधर से जाएंगे बढ़ता जाएगा। नाउ आई विल टेक 3 एग्जांपल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि SS कपलिंग में किया था। सो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इन 2p शेल सबशेल, तो p का मतलब होता है L1 is 1, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है तो कैपिटल L भी वही रहेगा। और जब भी कैपिटल L 1 होता है तो वो p स्टेट फॉर्मेशन होता है। एनर्जी स्टेट लिखेंगे तो सिंबल कैपिटल, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सिंबल स्मॉल। अब है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इज इन 3p सबशेल, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज इन 3d सबशेल। ये N होता है, ये p और ये d। p का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन,
अगर मैं लिखता हूँ पीडी कन्फिग्रेशन तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन पी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डी है। अगर मैं कहता हूँ डीपी कन्फिग्रेशन तो पहला इलेक्ट्रॉन डी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पी है। तो ये भी ध्यान देना कि पीडी लिखा हुआ है या डीपी, एसपी लिखा हुआ है या पीएस। तो ये पीडी लिखा है तो पी मीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बाद वाला सेकंड होता है। तो L1 इज 1 यानी और बाद वाला जो डी है तो L2 इज 2। तो कैपिटल एल की वैल्यू L1 माइनस L2 का मोड से लेके L1 प्लस L2 का मोड, या बड़ा माइनस छोटा कर दो तो मोड की जरूरत नहीं, 2 माइनस 1 से लेके 2 प्लस 1, यानी यहाँ 1 आ जाएगा या 3, लेकिन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 है, ये 3 है, लेकिन बीच में 2 अपने आप लिखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव वैल्यू इज 1। And when you say capital L is 1, student, it means this is P state. When capital L is 2, D state. When capital L is 3, then F state. Finally, ये वेक्टर एटम मॉडल के मुताबिक एल कपलिंग की डायग्राम है। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है, स्केच एस कपलिंग यूजिंग वेक्टर एटम मॉडल, स्केच एल कपलिंग यूजिंग वेक्टर एटम मॉडल। ये L1 वेक्टर है, ये L2 वेक्टर। अगर ये एरो बड़ा दिखाया तो इसका मतलब ये मेरे मायने में मन में है कि L2 की जो वैल्यू है L1 से ज्यादा है, और पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड। तो L1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड L2 के कॉरेस्पॉन्डिंग से, ये और ये आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल। को-इनिशियल पॉइंट के थ्रू जो डायगोनल होता है उसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। यही प्रिंसिपल डायगोनल इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, या फिर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। L1 वेक्टर और L2 वेक्टर की टेल को L1 वेक्टर के हेड पे लगाएंगे, टू वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज गिवन इन अपोजिट ऑर्डर। सो इधर यू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और यू अप्लाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इन P, सेकंड इलेक्ट्रॉन अगेन इन P, बट 3 वाला जो है 3P, और थर्ड इलेक्ट्रॉन इन D। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन P है तो L1 इज 1, सेकंड इलेक्ट्रॉन P, L2 इज 1, थर्ड इलेक्ट्रॉन इज D, L3 इज 2। तो इनको LL कपलिंग से हमें ये बताना है कि LL कपलिंग के मुताबिक हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स आर देयर। पहले इन दोनों की कपलिंग करेंगे। L1 L2 जब कपल करते हैं, अभी मैं बता रहा था L1 माइनस L2 का मोड से लेके L1 प्लस L2। तो L1 माइनस L2 यानी 0, L1 प्लस L2 यानी 2, लेकिन बीच में एक और इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी 1, so that we are sure about it that any difference between any two successive value is 1। अब ये तो इन दोनों की कपलिंग से L डैश आया, L3 कभी भी इंटैक्ट है। फिर ये L डैश की वैल्यू इसके साथ कपल करेगी, L डैश की वैल्यू 1 इसके साथ कपल करेगी, L डैश की वैल्यू 2 इसके साथ कपल करेगी। तो एक एक करके इसको इसके साथ कपल करवाएं। L डैश की वैल्यू 0, L3 की वैल्यू 2, तो आप जानते हैं रिजल्टेंट क्या होगा, 2 प्लस 0 से 2 माइनस 0, आई मीन 2 से 2, एंड व्हेन यू से L इज 2 इट मीन D एनर्जी स्टेट। अब आ गया L डैश इज 1 और L डैश इज 1, लेकिन L3 अब इस 1 को इसके साथ कपल कराना है। फिर क्या आएगा, 2 माइनस 1 का मोड से लेके 2 प्लस 1, यानी 1 से लेके 3, और बीच में अपने आप लिखना है 2, so that we are ensured the difference between two successive value is 1। So 1 mean P state, 2 mean D state, 3 mean F state। Okay, and then finally L dash की वैल्यू 2, इसको इसके साथ क्लब करेंगे, कंबाइन करेंगे, कपल करेंगे, the way you want to use which word। तो L dash की वैल्यू 2, L3 की वैल्यू 2, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार ऐड करेंगे। 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, और बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू एक के गैप पे आपको लिखनी होगी 1 2 3, और ये L0 S स्टेट, 1 मीन P स्टेट, 2 मीन D स्टेट, 3 मीन F स्टेट, 4 मीन G स्टेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक PPD कॉन्फ़िगरेशन है, LL कपलिंग के हेडिंग के अंडर अगर कप L हो तो टोटल एनर्जी स्टेट्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 स्टेट्स आ जाएंगे। तो फाइनली थर्ड, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को समझने से पहले जरूरी होगा स्पिन कपलिंग को समझना, जरूरी होगा LL कपलिंग को समझना। हाँ, कोई क्वेश्चन भी आ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एक्सप्लेन SS कपलिंग, एक्सप्लेन LL कपलिंग। रूसल सॉन्डर कपलिंग जिसका दूसरा नाम है LS कपलिंग, वो अब है। तो ये कैपिटल S वेक्टर जो कि SS कपलिंग के से आया था रिजल्टेंट, और L वेक्टर जो है वो इंडिविजुअल L से आया था। तो कैपिटल L वेक्टर टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, कैपिटल S वेक्टर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड। तो इसके पैरेलल आप ये लगाएंगे, यानी कहने का मतलब L वेक्टर की टेल को इसके हेड पे लगा देंगे और ये देखेंगे बिल्कुल इसके पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड। तो ये कोइनिशियल के थ्रू
ये एक तरीके का एल वेक्टर हो गया, ये एस वेक्टर, एल वेक्टर, ये रिजल्टेंट जे वेक्टर। बिल्कुल वैसे ही जे वेक्टर की पॉसिबल परमिसिबल वैल्यू एल वेक्टर प्लस वेक्टर एस की मिनिमम से लेके वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस की मैक्सिमम। और वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस का मिनिमम का मतलब जब वेक्टर हटेगा तो फिर एल माइनस एस का मोड, और ये एल प्लस एस, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। और वेक्टर जे का मोड इक्वल टू एच बार रूट जे इंटू जे प्लस वन। ये चीजें इसलिए बार बार रिमाइंडर एक बार आपको बता दूं, ये जो राइट साइड में जो होता है ये क्वांटम नंबर, दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, लेकिन ये ओनली टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मोड, एनीथिंग व्हिच इज मल्टीपल ऑफ h बार इज एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन आता है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फॉर sp कॉन्फ़िगरेशन इन ls कपलिंग। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ls sp कॉन्फ़िगरेशन में ls कपलिंग के हेडिंग के अंडर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, या ps कॉन्फ़िगरेशन है तो ls कपलिंग के हेडिंग के अंडर कितनी टर्म्स है, या pd कॉन्फ़िगरेशन है तो ls कपलिंग के हेडिंग के अंडर कितनी टर्म्स है। sp कॉन्फ़िगरेशन या ps कॉन्फ़िगरेशन में फिर बता दूं, जब मैं ये कहता हूं sp कॉन्फ़िगरेशन इट मीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज s सेकंड इलेक्ट्रॉन इज p, और जब मैं कहता हूं ps कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज p सेकंड इलेक्ट्रॉन इज s। हालांकि नंबर ऑफ टर्म्स रिमेन सेम, लेकिन अब ये तो sp कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज s यानी l1 0, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज p यानी l2 इज 1। तो पहले ll कपलिंग होगी, फिर ss कपलिंग होगी, फिर ls कपलिंग होगी। तो L इज कैपिटल L इज L1 प्लस L2 से लेके मोड L1 माइनस L2, यानी 0 प्लस 1 से लेके मोड 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 का मोड यानी 1, 0 प्लस 1 1, यानी रिपीटेड वैल्यू इज नॉट अलाउड। जब दो वैल्यू रिपीट हो तो उसको एक ही लिखना, यानी कैपिटल L इज 1, 1 मींस ओनली सिंगल वैल्यू, यानी कैपिटल L इज 1। उसके बाद मैं फिर कैपिटल S की वैल्यू क्या लिखूंगा, S1 प्लस S2 से लेके मोड S1 माइनस S2। और वेदर वी टॉक अबाउट S इलेक्ट्रॉन और P इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, स्पिन तो हाफ ही रहेगी, तो S इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन हाफ यानी S1 इज हाफ, P इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन हाफ यानी S2 इज हाफ। फिर हाफ और वो दोनों हाफ आपस में कपल करेंगे, यानी S1 प्लस कैपिटल S की वैल्यू क्या आएगी, S1 प्लस S2 से लेके मोड S1 माइनस S2। हालांकि ये मैंने आपको बताया था S1 हाफ S2 हाफ, तो यही चीजें यूज होती है, हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ, तो वो 0,1 आएगा। और ये भी बताया था जब कैपिटल S की वैल्यू 0 हो तो सिंगलेट होता है, कैपिटल S की वैल्यू जब 1 हो तो ट्रिपलेट होता है। तो कैपिटल S की वैल्यू 0 आएगी और 1 आएगी, लेकिन कैपिटल L की वैल्यू इस वक्त 1 है, तो ये कैपिटल L की वैल्यू जो 1 है एक बार इस कैपिटल S की वैल्यू 0 के साथ कपल करेगी, और फिर इस कैपिटल L की वैल्यू 1 इस कैपिटल S की वैल्यू 1 के साथ कपल करेगी। देन वी विल फाइनली arrive to have number of terms under the heading of sp configuration. So student, we are discussing sp configuration under the heading ls coupling. Question ये आएगा, show that there are 4 number of terms in sp configuration under the heading ls coupling. तो अभी ll coupling मैंने डिस्कस की थी sp configuration में। अब SS कपलिंग, तो S इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज S, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज P, स्पिन इज हाफ, स्पिन इज हाफ। तो कैपिटल S का फॉर्मूला S1 प्लस S2 से लेके मोड S1 माइनस S2, यानी हाफ प्लस हाफ से लेके हाफ माइनस हाफ मोड, यानी 1,0। और अभी बताया था SP कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट नाउ कैपिटल L इज 1, तो कैपिटल L इज 1 coupled with S equal to 0, then capital L is 1 coupled with S equal to 1, so capital L1 coupled with S equal to 0। तो अब जब capital L will couple with capital S, then the resultant is capital J which is capital L plus capital S से लेके capital L minus capital S का मोड, यानी 1 plus 0 से 1 minus 0 का मोड यानी 1। और कैपिटल S की वैल्यू 0, आई मीन टू से मल्टीप्लिसिटी इज 2s प्लस 1 यानी 1। मल्टीप्लिसिटी जब भी 1 होती है तो हम सिंगुलर स्टेट बोलते हैं। अब सवाल ये कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन इज 2s प्लस 1 Lj। मल्टीप्लिसिटी 1 है और L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 का मतलब P एनर्जी स्टेट, और नीचे सफिक्स जो होता है J, J कितना है 1, जिसका वाकई सिंगुलर स्टेट का तो ओनली 1 एनर्जी स्टेट इज देयर, ओनली 1 टर्म इज देयर। अभी L की वैल्यू 1 को S के इक्वल टू 1 के साथ कंबाइन करना है, तो L की वैल्यू 1 थी, S इक्वल टू 0 के साथ कंबाइन हुआ। नेक्स्ट इज L की वैल्यू 1 को S इक्वल टू 1 के साथ कंबाइन होना है, तो फिर J की वैल्यू L प्लस S से लेके मोड L माइनस S, 1 प्लस 1 से लेके 1 माइनस 1 का मोड, ये 0 हो गया, ये 2, लेकिन बीच में 1 इंटरमीडिएट है क्योंकि 2 कंसेक्टिव वैल्यू के बीच में गैप
1 और मल्टीप्लिसिटी 2s+1 s1 है तो 3 आ जाएगा 3 जब भी मल्टीप्लिसिटी 3 है तो उसे बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन मल्टीप्लिसिटी 3 है L की वैल्यू 1 है तो P एनर्जी स्टेट J कितना है 2 J कितना है 1 J कितना है 0 तो 3 एनर्जी स्टेट यही तो ट्रिपलेट के मायने हैं 3 मेंबर यही तो सिंगलेट के मायने हैं ओनली 1 मेंबर सो एक सिंगलेट का मेंबर 3 ट्रिपलेट के मेंबर तो हाउ मेनी टोटल terms या how many total energy states are possible for sp configuration answer is 4 तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है राइट डाउन पॉसिबल एनर्जी स्टेट फॉर sp configuration when we deal ls coupling अब लास्ट में pd configuration में यही क्वेश्चन आएगा राइट डाउन पॉसिबल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स और टर्म्स for PD configuration in LS coupling. PD configuration means first electron is P, second electron is D. First electron P, L1 is 1, second electron is D, L2 is 2 और कैपिटल L की पॉसिबल वैल्यू क्या बताई थी LL कपलिंग में L1 प्लस L2 से लेके मोड L1 माइनस L2 सो 1 प्लस 2 से लेके 1 माइनस 2 का मोड यानी 1 माइनस 2 का मोड इज माइनस 1 का मोड यानी 1 और 1 प्लस 2 मीन 3 और बीच में इंटरमीडिएट इज 2 और जब कैपिटल L is 1 there is P state कैपिटल L is 2 there is D state कैपिटल L is 3 there is F state अब बारी आती है SS कपलिंग और whether P इलेक्ट्रॉन और D इलेक्ट्रॉन स्पिन दोनों की हाफ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज P सेकंड इलेक्ट्रॉन इज D इट मीन S1 is half S2 is half और कैपिटल S क्या होता है S1 प्लस S2 से मोड S1 माइनस S2 हाफ प्लस हाफ से हाफ माइनस हाफ यानी 0 हाफ प्लस हाफ 1 हाफ माइनस हाफ 0 और s इक्वल टू 0 है तो भी बता रहा था s इक्वल टू 0 मल्टीप्लिसिटी इज 1 सिंगलेट s की वैल्यू 1 तो मल्टीप्लिसिटी 3 यानी ट्रिपलेट अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी है l की वैल्यू 1 फर्स्ट पॉसिबिलिटी है s की वैल्यू 0 को इन तीनों इंडिविजुअल l के साथ कपल करिए s इक्वल टू 0 कपल्ड विद 1 l इज 1 s equal to 0 coupled with l equal to 2 s equal to 0 coupled with capital L equal to 3 और ये l j की वैल्यू क्या होती थी l plus s से लेके mod l minus s 1 plus 0 से लेके mod 1 minus 0 यानी only 1 और ऊपर क्या होता है मल्टीप्लिसिटी s equal to 0 में मल्टीप्लिसिटी इज 1 और l1 का होता है p स्टेट और नीचे j की वैल्यू s equal to 0 में मल्टीप्लिसिटी इज 1 l की वैल्यू 2 में d स्टेट और नीचे j की वैल्यू s equal to 0 मल्टीप्लिसिटी 1 l equal to 3 f स्टेट नीचे j की वैल्यू तो ये भी सिंगलेट है ये भी सिंगलेट है ये भी सिंगलेट है तो फॉर सिंगलेट हाउ मेनी एनर्जी स्टेट 1 2 3 सो 3 एनर्जी स्टेट इन टोटल लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं है अभी वर्क कंप्लीट नहीं है अभी वर्क इनकम्प्लीट है क्योंकि s equal to 1 is yet to be talked about तो कैपिटल s equal to 1 को इन तीनों l के साथ कंबाइन करेंगे क्लब करेंगे ज्वाइन करेंगे कपल करेंगे तो s equal to 1 is combined with L1, s equal to 1 combined with L equal to 2, s equal to 1 is coupled with L equal to 3. तो जब ये दोनों कपल होंगे तो j की वैल्यू L plus s से मोड L minus s 1 plus 1 से लेके 1 minus 1 1 minus 1 0 1 plus 1 2 बीच में इंटरमीडिएट 1 तो एनर्जी स्टेट s equal to 1 मीन मल्टीप्लिसिटी 3 L equal to 1 मीन एनर्जी स्टेट p और नीचे j की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1 j की वैल्यू 0 यानी 3 P या तो अलग अलग J लिखे या इकट्ठे लिख दीजिए फिर आ गया S equal to 1 is coupled with L equal to 2 तो J की वैल्यू L plus S से L minus S 2 plus 1 से 2 minus 1 का मोड यानी 3 2 1 और L equal to 2 तो D एनर्जी स्टेट S equal to 1 मल्टीप्लिसिटी 3 नीचे J की वैल्यू 3 J की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1 या तो अलग अलग J लिखे या कंबाइन कर दीजिए एंड फाइनली S equal to 1 is coupled with L equal to 3 ये मैं बता रहा हूँ दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों की जो कपलिंग है यही तो कपलिंग है एलएस कपलिंग और जे की वैल्यू 3 plus 1 से 3 minus 1 मोड 3 minus 1 यानी 2 3 plus 1 यानी 4 बीच में इंटरमीडिएट 3 क्योंकि दो कंसेप्टिव के बीच में गैप 1 और L3 है तो F एनर्जी स्टेट S1 है तो मल्टीप्लिसिटी 3 नीचे J की वैल्यू और ये कितनी यहाँ तो अलग अलग J लिखी या कंबाइन 3 एनर्जी स्टेट 3 एनर्जी स्टेट 3 एनर्जी स्टेट 9 एनर्जी स्टेट तो ये ट्रिपलेट की होगी 3 एनर्जी स्टेट सिंगलेट की होगी So how many total energy state for PD configuration in LS coupling? Answer is 12. That's what I was to prove in my today's lecture. Thank you so much.